शिखर की व्हाट इज द फैक्टर कि तूने 4-1 इंडिया प्रेडिक्ट किया है एंड आर यू स्टिल बैकिंग दैट? एंड मैंने तेको इतने इंटिमिडेटिंग स्टैट्स बताए ब्रुक रूट के, मैंने तेको वेन्यूज के स्टैट्स बताए, आर यू स्टिल गोइंग विद 4-1? I am definitely going with either 3-2 or 4-1 वाह। to India because मुझे लगता है ये थोड़े पागल है इंग्लैंड वाले। इनको थोड़ा मेंटल इलनेस है। एंड सॉरी फॉर एनी इंग्लैंड सपोर्टर। आई डोंट नो इंडिया में कौन होगा जो ये हमारा सुन रहा होगा और वो इंग्लैंड सपोर्टर होगा, बट है कुछ लोग जो अमेरिका में बैठे हैं वो इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं। आज एटकिंसन। ही मैं वो आज ही मैं वो मूवी देख रहा था केसरी 2, उसके बाद और भी हेटरेट बढ़ गया इंग्लैंड की तरफ। तो जलियांवाला बाग का मैसेकर देख के तो शिखर इज पम्प्ड। एनीवे, तो ये थोड़े मेंटल है। देख इसने इन्होंने ना जिमी एंडरसन को रिटायर करवा दिया बिना मतलब का, जबकि इनको इनको लग रहा है कि एटकिंसन ने जो 50 विकेट ले लिए और कार्स ने वो ले लिए, मतलब कि ठीक है, दे बोल्ड वेल, लॉर्ड स्पाइसी एटकिंसन, कंडीशन। लॉर्ड जेमी स्मिथ। और वेस्ट इंडीज और श्रीलंका, आई वांट इंडिया का ये जो बी स्क्वाड जा रहा है, आई मीन विदाउट रोहित एंड विराट, आई वांट देम टू हिट इंग्लैंड लाइक अ ट्रेन wreck. They should वाह। hit in England and give them a reality check कि तुम लोग मेंटली हिल लो। तुमने एंडरसन को रिटायर करवा दिया, बेन फोक्स को हटा दिया कि तुम्हें बेसबॉल खेलने वाला है, लेकिन बेन बेन स्टोक्स खुद बेसबॉल नहीं खेलेगा। नहीं भाई, आई बेयरस्टो को थिंक हटा फर्स्ट दिया। फर्स्ट सीरीज है नए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की, तो बेन स्टोक्स विल बी पम्प्ड बिकॉज दिस इज द फर्स्ट सीरीज ऑफ द न्यू साइकिल, फोर्थ फोर्थ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। आई मीन बेन स्टोक्स इज अ स्पेशल प्लेयर, वो भी एक्चुअली बहुत अच्छा खेलेगा, बॉलिंग वॉलिंग करेगा। बट यार इनको ना एक लेसन देना है। और आई थिंक आई जस्ट होप कि लीडरशिप थोड़ा रहे, क्योंकि हम्म। शुभमन गिल से मैं समझ वो चीज थोड़ा लैकिंग रहेगा कि वो पम्प्ड अप करना और लीडरशिप हम्म। एक जडेजा एंड वो बुमराह विल प्ले करना। अ रोल देन लीडरशिप। हम्म। हाँ, और गंभीर को रहना बहुत जरूरी है। वो रहेगा तो आई एम श्योर कि थोड़ा वो होगा, मतलब कि हम्म। थोड़ा पंगा लेना पड़ेगा इन लोग से ना। उस तरह नाइस। का मैच होना चाहिए। अगर तो Hi friends, welcome to Cricket Caviar. The most awaited series, India's Tour of England, is finally here. And Shikhar, this time I am having a mixed feeling. Usually I look forward to this tournament very, very much, especially the kind of bar that Virat Kohli tried to set up in that 2018 tour, even though we lost 4-1, but the fight he showed and the way we competed in that series set up this beautifully, this rivalry. I remember the incident between Anderson and Jadeja, and then in 2022 tour again under Virat Kohli's leadership, the way we won that Lord's Test. So we have some great memories. Obviously, India has not performed the way we would like to see, and that is common again also in South Africa as well. But we always have a team, and we are kind of adapting to these conditions slowly. So yeah, I wanted to take your thoughts on India tour of England and like again some sweet memories that you have whenever India goes there. yeah, Pratik. So I've been following India's tour of England since 2002, Mm. and 2002 was my first memory of Indian tour and how we competed there. It was a brilliant series. It was won by England, but I think we had a great partnership between Sachin, Dravid. All of them scored big hundreds, and I think we leveled that series. We I'm we not. drew the series. We drew the series 1-1. Correct. Yes, yes, Hmm. we drew the series. There was some good innings from England side from Michael Vaughan, and John Crawley was there, and Hmm. Alex Tudor was bowling in that series. I remember. Yeah. And then 2007 comes and we win that series with sheer luck because Steve Buckner doesn't give Srishant out to Hmm. Monty Panesar. And then there is a rain on fifth day, just when India uh, were surviving. Dhoni and Srishant were batting, and the last wicket was about to fall. And the second and third test were drawn with even Anil Kumble scoring hundreds. Yeah. And so Quick trivia. uh, You I don't think you can guess this. Who was our highest run scorer in that series in 2007? 2007, was it Dinesh Karthik or Yes, Dinesh Karthik. yeah? I was impressed when I saw the stats. And I was actually going to come to that Dinesh Karthik Wasim Jafar opening combination because I think opening is such an important job in England.
Yeah. We just saw Aiden Markram hit a brilliant 100 in WTC Mm. final. But yeah, overall, the memories of the tour in England have been great. We have seen some great cricket. 2014 and 18 were the most disappointing tours, Mm. where we just got some hope that India will win, Yeah. but it was too far for us. Right. And 2021 was the saddest of all time because we had that series, but because of IPL, our players, uh, you know, showed their idiotic royalty and Mm. they didn't play that fifth test where we could have actually won that series and wrapped up. But they came 1 year later when England were much better and had implemented baseball, and because of which we lost out on a great opportunity to win a series in England. But this time, I think both teams, Pratik, this time are totally under transition. We have England who have, at least they have a leadership constant, like Ben Stokes has been leading them. But other all aspects of their games have changed. Like the batters are okay; they are more or less the same. They still have continuity with Joe Root Yeah. and Ollie Pope and all those guys. Ben And Ben Duckett, Duckett has become Crawley, experienced. Crawley has become slightly experienced. Pope is there yeah, for, Harry Brook. yeah. So all those guys are there who are constant. But on the other side, India is totally going under transition. Their batting lineup will be very changed, and English bowling lineup will be totally different. Yeah. They will have Stuart Broad and Anderson missing this series, so it will be a totally different lineup there. And that's what makes this series interesting because it's New England or a semi-New England versus a totally new India. Even if Mm. you compare India, so the bowling lineup has remained constant, but the batting lineup has changed. So most of the guys who bowled on the last tour, except for Mohammad Shami, they will all be there. Shardul will be there, Shami will be there, Bumrah will be Mm. there, and spinners, mein at least Jadeja was the one who was also playing the last tour, so I think he will continue to play. So the bowling lineup is same for India. The Mm. batting lineup is probably same for England from the last few years. Yeah. It's So now interesting we that will. transition for one team is in batting and for one team it's in bowling. Yeah. Yeah, yeah. So now we'll see that which inexperience, whether Indian Mm. inexperienced batting can stand up or the English inexperienced bowling can stand up. So that is going to be the key contest, I think, which is going to define this series. And Yeah. coming to the opening, I think is going to be very crucial how KL Rahul, Let's who's let's been discuss this when experienced. we go to the squad slide. Yeah, Yeah, I'll yeah. quickly take श्रेयांश भाई thoughts as well. श्रेयांश भाई आप म्यूट पे हैं, बट आज हम जब वीडियो बना रहे हैं अभी तक तो इसका नाम तेंदुलकर एंडरसन ट्रॉफी है, बट वी डोंट नो व्हाट विल इट बी कॉल्ड। तो बट आपके क्या मेमोरीज रहे हैं जब भी इंडिया इंग्लैंड जाती है? आई वांटेड टू हाईलाइट सम ऑफ दोज, वांटेड टू हियर दैट। नहीं तो मैंने फर्स्ट टाइम इंडिया इंग्लैंड आई थिंक 96 97 में जब गांगुली डेब्यूट, ओह वाओ। तब से ही मेरी मतलब इंडिया इंग्लैंड की मेमोरीज तब से शुरू हुई है। और नाइस। उसके बाद मतलब गांगुली की कैप्टनशिप में जब हमने काफी टाइम बाद एक मैच जीता, सीरीज ड्रॉ कराई। या 2002, यस। हाँ, फिर उसके बाद आई थिंक उसके बाद से तो बीच बीच में काफी खराब ही रहा, और लास्ट टाइम बहुत डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि हम ऑलमोस्ट जीतने ही वाले थे, कोविड आ गया, उसकी वजह से एक मैच बाद में हुआ। या। तो वी कुडंट डू विन द सीरीज इन इंग्लैंड। सो मेमोरीज यही है कि मतलब बहुत एक्सट्रीम टाइप रहा है, रिजल्ट्स हम्म। भी एक्सट्रीम ही रहते हैं। और हमेशा मतलब हर टूर पे टिपिकली जो नए प्लेयर्स हैं उसमें से कोई सुपरस्टार जरूर निकला है इंग्लैंड टूर से। ये आपने एक सो बहुत अच्छा पॉइंट बोला। मैं एक्चुअली अभी वही स्लाइड दिखाना चाहता हूँ कि कैप्टन्स का कैसा रिकॉर्ड रहा है। और इसमें जो स्टार्स रहे हैं ना, उनमें सच में काफी सरप्राइजिंग नाम भी हैं, आप देखेंगे तो। आपने क्योंकि वो अजहरुद्दीन वाली सीरीज का मेंशन किया तो मैंने इसमें नहीं डाला था, बट 1996 में वी लॉस्ट 1-0, बट यार द टीम फॉट वेल। उसमें सचिन और गांगुली के काफी रन नहीं, आए थे। हाँ उसमें एक्चुअली में हाँ। उस टाइम पे तो 1-0 भी इंडिया के लिए जीती होती थी, हाँ। क्योंकि मतलब ड्रॉइंग टू टेस्ट मैचेस वाज अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। या। मतलब दैट वाज द टाइम वेयर मतलब हम करेक्ट। हमारा 100 ओवर टिकना ही बहुत मुश्किल होता था बाहर। हाँ। बट सो दैट वाज अ 1-0 वाज अ गुड रिजल्ट। मतलब हम लोग गांगुली की कैप्टनशिप के बाद में ही बाहर टेस्ट मैच जीतने की सोचने लगे थे। एब्सोल्युटली। उससे पहले तो हम नहीं जीत पाते थे टेस्ट मैचेस। हम्म। तो वही इस सो टेबल में अगर हम देखेंगे तो अर्ली 2000 में हमारा रिकॉर्ड कितना अच्छा है। लाइक 2002 में गांगुली की लीडरशिप में ड्रॉ किया,
7 में तो जीत ही गए थे। एंड उसमें मैं आपको शायद भाई वो भी बोलना था, सरप्राइजिंग नाम आप देखिए, 2002 में कुंबले ने हाईएस्ट विकेट्स लिए हैं, 2007 में डीके के हाईएस्ट रन हैं, देन 2011 में बहुत खराब सीरीज थी बट प्रवीण कुमार स्टैंडर्ड आउट एज द वेरी गुड बॉलर, 2014 में मुरली विजय हाईएस्ट रन स्कोरर, 2018 में ईशांत शर्मा हाईएस्ट विकेट टेकर, एंड 2022 वाली में रोहित शर्मा हाईएस्ट रन स्कोरर इन इंग्लिश कंडीशंस। बहुत सरप्राइजिंग है यार ये सब। और आप लोग इसको इस पे कुछ कमेंट कीजिए, बट मैं एक लास्ट चीज एक और बोलना चाहूंगा। लास्ट 25 सालों में ये सीरीज सबसे जल्दी स्टार्ट हो रही है। आप देखिए जून 20 को ये स्टार्ट होने वाली है, तो डेफिनेटली वो जो कंडीशंस वाला जो फैक्टर रहता है ना, वो बड़ा होगा इस सीरीज में। आप देखिए बाकी सीरीज मोस्टली जुलाई में स्टार्ट हुई हैं और कुछ जून में हुई हैं, बट जून 20th इतना अर्लीस्ट अभी तक कोई सीरीज स्टार्ट नहीं हुई। तो मे भी वैसे ही हो सकता है जैसे अभी WTC में हुआ कि भाई तीसरे चौथे दिन पिच अच्छा हुआ, एंड हाँ, शुरू के 2 डेज बहुत ही बहुत मतलब टेस्टिंग। डेंजरस है। और हम्म। इन्होंने लेकिन ना जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया ए के जो मैचेस हुए इंग्लैंड लायंस से उसमें इन्होंने बैटिंग पैराडाइज दी है, 400 हाँ, रन बने हैं, मतलब वहां पे अभी तक इन्होंने एक्सपोज नहीं किया इंडिया को उस कंडीशन से जो टेस्ट मैचेस में आने वाली है। और दोनों उन मैचेस में इंग्लैंड लायंस ने बॉलिंग फर्स्ट करा, तो मुझे लगा था कि भैया बैटिंग टेस्ट होगी, बट वो एक्चुअली बैटिंग कंडीशंस थी। बट इसमें अगर अपन देखेंगे तो धोनी का रिकॉर्ड सबसे खराब है, 1 जीत और 7 हार। एंड देन विराट का डिसेंट है, 3 विंस 5 लॉसेस। बट या क्वेश्चन मार्क जो है वो इम्पोर्टेंट है, गिल की कैप्टनसी में हाउ विल इंडिया डू। तो जब इंडिया ने, जस्ट मेरा क्वेश्चन है, जो 2006 में जब सीरीज जीती थी, हु वाज द कैप्टन? द्रविड़? या द्रविड़ वाज द कैप्टन। उसमें द्रविड़ कैप्टन था, दिनेश कार्तिक और वसीम जाफर ओपनर्स थे। ओपनिंग करते सब थे, कुछ हाँ। उल्टा सब कुछ उल्टा पुल्टा था उस टूर में। हाँ, धोनी भी जस्ट नया कीपर ही आया था। श्रीशांत बॉलर था। फिर आपके ऐसे ही अच्छा, कुछ और थे। पता है जहीर ने वो 18 टेस्ट विकेट्स मैच, लिए थे लेकिन 3 मैच नहीं में। वो सीरीज इंडिया जीती वो क्यों थी? एक मतलब एक बहुत जबरदस्त ट्रिविया है उसका। हम्म। शिखर को तो याद हम्म। होगा, वो सीरीज इंडिया जीती क्यों थी? जुलाई में एक स्टार्ट वो हुई टेस्ट थी एक ना। मैच तो था बारिश लॉर्ड्स मैंने में। शुरू में बोला ना, मैंने बारिश हो गई थी, वो जो श्रीशांत और धोनी एलबीडब्ल्यू नहीं दिया बकनर ने। फिर हाँ उसके करेक्ट, इट वाज अ प्लम LBW, प्लम मतलब एक झटके में मोंटी पानेसर मतलब। के बॉल। अच्छा, ये हाँ इसमें वही बिल्कुल। मैच था क्या जिसको धोनी को बहुत सेलिब्रेट किया था 80 नॉट आउट के हाँ लिए? वो 80 नॉट आउट जो 74 नॉट उसने, आउट, हाँ हाँ हाँ, से, वही 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 ओ वही। हाँ, उससे डिले कर दिया था इट थोड़ा उसने, हाँ। हाँ प्लम LBW था, दिया नहीं, और उस वजह से इंडिया सीरीज जीत गई। हम्म। दैट्स वेरी लास्ट इंटरेस्टिंग। टाइम वही हुआ ना, इंडिया सीरीज हार गई क्योंकि मैच में हम्म। बारिश आ गई लास्ट डे। लास्ट सीरीज में यही हुआ हम्म। ना, अदरवाइज 3-1 हो जाता, लेक- फिर हार भी लेकिन जाते तो ये जो 3-2 होता। धोनी वाला पीरियड था ना, इस समय एक्चुअली इंग्लैंड बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। जो ठीक है, तू बोल रहा है कि उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है, 7-1, बट आई थिंक नहीं दिस नहीं, वाज लेकिन द। उसमें शिखर नहीं, रिकॉर्ड खराब से ज्यादा खराब एक भी है ना, उसमें दो चीजें हुई धोनी वाले पीरियड में। इंग्लैंड स्ट्रांग से भी ज्यादा क्या हुआ ना कि इंडिया के भी जो सुपरस्टार्स थे हाँ, उनकी एजिंग शुरू हो गई। जो अभी हमने तो बीजीटी सिर्फ में देखा अभी सच तो जो। हम्म। सो सो नॉट ओनली इंग्लैंड, बट हम उस टाइम हम ऑस्ट्रेलिया में भी 4-0 हारे थे। करेक्ट। हम्म। तो बेसिकली वो इंडियन सुपरस्टार जो थे, मतलब सचिन, द्रविड़, ये सब लोगों का एजिंग शुरू हो गया था, लक्ष्मण वगैरह। तो आई थिंक मतलब दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस ऑफ इंडिया लूजिंग सो बैडली। एंड एंडरसन का पीक था उस टाइम पे, एंडरसन ब्रॉड की जोड़ी बहुत अच्छी थी उस नहीं टाइम यार, पे। एंडरसन का तो पीक कभी खत्म ही नहीं हुआ भाई, लास्ट सीरीज में भी एंडरसन का एंडरसन पीक अच्छा नहीं, ही उस था। समय उनके बॉलिंग अटैक अटैक में स्वॉन था। मतलब इट वाज अ वेरी गुड बॉलिंग अटैक। बैलेंस्ड। मतलब हाँ, उस टाइम तो वेरी सोच रहा हूँ बैलेंस्ड। इंडिया में भी सीरीज जीत के गए भैया, उस टाइम वो इंडिया में भी सीरीज हाँ, जीत के गए। केविन पीटरसन, यान बेल तो खेलता ही रहता था, बैटिंग हम्म। करते ही रहता था यान बेल। यार एक तो कोई इंग्लैंड का एक बॉलर था, उसने भी एक बार एलिस्टर बहुत कुक। रन बना दिए थे, 80 रन कुछ एक मैच में, मुझे याद है जब हम अच्छा खेल रहे थे। ब्रेसनन ब्रेसनन करके, बहुत बहुत अजीब अजीब चीजें हुई थी उस सीरीज हम्म। में। हम्म। नहीं, वो तो इंग्लैंड का टेल नहीं हमेशा वो होता फाइट है ना करता था, भाई, सैम वो करन। मतलब उसी 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 सीरीज का एक रेप्लिका इंडिया में भी हुआ जब जयंत यादव ने भी सेंचुरी मारी। हाँ। हाँ, लेकिन एक बात की क्रेडिट देना पड़ेगा, ओवरऑल इंडिया इंग्लैंड के जो रिकॉर्ड्स है उसमें सबसे अच्छा विन परसेंट विराट का ही है। तो जब भी इंडिया इन फेज में, जब इंग्लैंड आई थी इंडिया, तो बहुत अच्छा धोया। तो विराट को क्रेडिट तो जाएगा, स्पेशली द वे वी फॉट इन द लास्ट सीरीज। तो उससे जरूर इंस्पिरेशन लेंगे, उसमें भी काफी खिलाड़ी थे जो अभी खेल रहे नहीं, हैं। आई थिंक रोहित का होना चाहिए यार, 2 उधर जीते और 4 हम्म। इधर जीते, 6 जीते रोहित ने ना। रोहित ने 6 जीते हैं और हम्म। सिर्फ 2 हारा, एक हारा है। अच्छा, मे बी उसका रोहित ने नहीं, इंग्लैंड में कैप्टनसी नहीं की, नहीं श्रेयांश भाई। की।
नहीं की रोहित ने। नहीं की ना, क्योंकि वो बुमराह हाँ चला गया फिफ्थ टेस्ट में एज ए कैप्टन, उसके पहले विराट ही था। हाँ, रोहित होने ओके वाला था ओके ओके। कैप्टन, बट उसको हाँ कोविड के टाइम में कुछ तो हुआ था कि वो अनअवेलेबल हो गया हाँ था। हाँ। नहीं नहीं नहीं, वो मतलब वो उसने, हाँ उसमें वो इंजर्ड था, बुमराह गया था हम्म। एज ए कैप्टन उस समय। अच्छा हाँ, लास्ट सीरीज में कैप्टन तो कोहली था ना, करेक्ट। हाँ, कोहली ही 60 था, ओवर्स ऑफ राइट। कोहली का हेल्थ। लास्ट सीरीज था 60 वो ओवर। एक्चुअली डिफाइनिंग ईयर। तो वेन्यूज की बात कर लेते हैं। 5 टेस्ट ऑर्डर में है। पहला लीड्स में, दूसरा बर्मिंघम, लंदन, सॉरी लॉर्ड्स, मैनचेस्टर, और फिर हम्म। वापस और द पता है एक ओवल। और चीज अलग हो रही है, हमेशा ना थर्सडे को शुरू होता है टेस्ट मैच इंग्लैंड में। हम्म। हम्म। टिपिकली इस बार आई थिंक फ्राइडे को हो रहा है। फ्राइडे को हम्म। है, हाँ करेक्ट। हम्म। और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है गाइस कि ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम को नहीं रखा है इन्होंने वेन्यू में, जहाँ पे इंडिया ने एक बहुत ही बड़ी थंपिंग विन रजिस्टर की थी 2018 में। 200 रन से हराया था विराट ने, उसमें 97 और 103 मारे थे। वो ही मैच है जहाँ पांड्या ने फाइफर लिया था, इन सबको चौंका दिया था। बट इन्होंने उसको नहीं हम्म। रखा है। और आप देखो कैसे वेन्यूज रखे लिस्ट में, एजबेस्टन और ओल्ड ट्रैफर्ड, जहाँ हम कभी नहीं जीते। तो हम्म। ऑलरेडी इंटिमिडेटिंग लग रहा है मेरे को तो ये। और ये सब वही है, फोर्थ इनिंग्स वाले पैराडाइज वेन्यूज हैं ये सब। ये हम्म। एजकाबेस्टन तो याद ही होगा, बेन स्टोक्स ने 362 चेज कर दिया था ऑस्ट्रेलिया हाँ के अगेंस्ट। और हाँ हाँ। ये सब वैसे ही हैं जो इंग्लैंड चाहती है कि फोर्थ इनिंग्स में, जैसे हुआ अभी WTC फाइनल में, तो करेक्ट। सारे में वही होगा कि हुएवर विंस द टॉस विल चूज टू बॉल फर्स्ट। उस तरह के ही वेन्यूज हैं सारे। और लीड्स तो शायद एंड नॉर्थ लंदन में, तो थोड़ा और ठंड रहेगा वहां, तो और शायद लाइक बॉल मूवमेंट वगैरह सब विल बी इन प्लेस। हाँ, तो लीड्स भी अच्छा बैटिंग वेन्यू है, लीड्स इज ओ ऑल्सो गुड बैटिंग वेन्यू। अच्छा। एंड ओवल तो स्पिनर्स को हेल्प करेगा, मतलब जहाँ हम्म। लास्ट टेस्ट मैच है। वैसे एंड भी वहां अगस्त पे में वो, हाँ लास्ट टेस्ट हाँ, अगस्त में। WTC फाइनल भी लास्ट टाइम इंडिया वहीं हारी थी ऑस्ट्रेलिया से, ओवल में ही हारी थी। हम्म। तो वहां पे नेथन लायन ने भी विकेट्स लिए थे, मुझे याद है। हम्म। तो वहां पे आते आते थोड़ा स्पिन होने लगेगा। दो स्पिनर खेल सकते हैं वहां पे तो फिर। हाँ, तो वो फिफ्थ टेस्ट पक्का मैं बोल सकता हूँ, बुमराह विल प्रोबेबली रेस्ट, अगर सीरीज ऑन द लाइन नहीं है और कुछ मतलब कि ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है। हाँ, तो दैट टेस्ट आई एम श्योर बुमराह बुमराह विल बी रेस्टिंग दैट टेस्ट। एंड क्योंकि उसके अलावा पहले सब। से ही अनाउंस्ड है कि 3 ही टेस्ट मैच खेलेगा बुमराह। 3 ही खेलेगा, 4 भी नहीं? नहीं नहीं, वो बोल चुका है गौतम गंभीर की 3 ही खेलेगा, एंड विच 3 वी विल पिक दोस, विच 3 ही इज गोइंग टू प्ले। हम्म। अभी वैसे एक इंट्रा स्क्वाड मैच चल रहा है करंटली, और वहां पे गौतम गंभीर को किसी फैमिली इमरजेंसी वजह से दिल्ली जाना पड़ा, बट वो काफी क्रूशियल मैच है, उससे ओपनर्स हम्म। पक्के हो जाएंगे। नहीं, ओपनर्स पक्के हो चुके हैं इस सीरीज में के। मतलब यार देख, केएल ने इंडिया ए के लायंस, मैच में 100 हाँ मार दिया है, लायंस हाँ के मैच में। करेक्ट, वो फिक्स हो गया। तो आई डोंट थिंक ये ओपनर्स पे अभी कोई सवाल है, एंड केएल और यशस्वी तो अपना जायसवाल ही बेस्ट होंगे। बैट्समैन है ही सही लास्ट 2 साल से, तो करेक्ट। इसमें ऑब्वियसली कोई और। जायसवाल का उतना अच्छा नहीं रहा, हम्म। मतलब ये एक बट गेम आई से थिंक उतने ना अच्छे नहीं रहे। शिखर, मैं पूछना चाहता हूँ कि जुरेल का क्या लगता है, क्योंकि वो दोनों ए मैचेस में उसने बहुत बेहतरीन बैटिंग करी है। ऑस्ट्रेलिया के भी प्रैक्टिस हम्म। मैचेस में उसने बहुत अच्छी बैटिंग करी थी, तो टेस्ट मैच हम्म। टेम्परामेंट और मतलब हम्म। एटीट्यूड, आपके उसको क्या हम्म। बोलते हैं यार, मैं वो वर्ड भूल गया। टेम्परामेंट, कंपोजर, टेक्निक। नहीं, आप टेक्निक। टेक्निक। सही बोल रहे हो, मतलब श्रेयांश भाई, जुरेल का तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड रहा है। जुरेल बट और अभी करुण नायर में से एक ही खेल सकता है पर। बट एक ही बस। खेल चक्कर सकता है, वही है। जुरेल और करुण नायर से। तो करुण नायर ने 200 मार दिया था आई थिंक पहले ही ए मैच में। हम्म। तो आई थिंक करुण नायर को ही नंबर 5 रखेंगे। एंड नंबर 6 ऑनवर्ड्स तो इंडिया के ऑलराउंडर्स ही शुरू हो जाएंगे नंबर 6 से। विकेट 6 पे कीपर तो जाडेजा, ऑलराउंडर्स। 6 पे जाडेजा, 7 पे शार्दुल हाँ या नीतीश हाँ, तो रेड्डी। ये वही वही तो नंबर 6 ऑनवर्ड्स तो वही विकेट कीपर और आपके ऑलराउंडर्स मिला के नंबर 9 तक चले जाएंगे। नहीं, तो विकेट मुझे लग कीपर रहा है तो करुण 5 पे नायर। खेलेगा ना, विकेट कीपर तो आपका पंत हाँ, रहेगा, जो पंत 4 या 5 आगे पे खेलेगा, खेलेगा। मुझे लगता है पंत आगे खेलेगा, क्योंकि वो मुझे लग रहा अक्सर है मे पांच बी आ रहा पंत है। को 6 पे खेले, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है पंत में भी इस सीरीज में 6 पे पर खेले, बीजीटी में क्योंकि 5 पे ही व्हाट। आ रहा था शिखर। मैं अपना 11 बता देता हूँ एक बार, फिर आप बताना आप इफ यू हम्म। डिसएग्री। हाँ हाँ। यशस्वी केएल ओपनर्स, साई हम्म। सुदर्शन मुझे लगता है उसको चांस मिलेगा पहले टेस्ट मैच में 3 हम्म। पे, एंड देन गिल 4 पहले से हम्म। डिसाइड हो चुका है। पंत 5, हम्म। करुण नायर 6। अगेन अब ये बात सही है शिखर की, करुण नायर 6 डजंट मेक सेंस, थोड़ा लेट लग रहा है। इसके हाँ, बाद करुण 6 पे आना हाँ, चाहिए एनकेआर आई और थिंक। वॉशी, बिकॉज मुझे लग रहा है वॉशी को चांस देगा गंभीर। गंभीर ऐसा नहीं जाएगा कि भाई मैरिट पे जाऊंगा पहले, जडेजा सीनियर है, आई डोंट थिंक ऐसा होगा। नहीं एंड नहीं, देन वॉशी नहीं खेलेगा। एंड देन वॉशी नहीं मेरे खेलेगा। नहीं नहीं, 100% जाडेजा खेलेगा, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है भाई, एंड सब देन भूल ही मेरे जडेजा जाओ। तीन 100% है भाई। मेरे तीन वो पेसर्स है, 100% प्रसिद्ध, खेलेगा। सिराज, बुमराह। अब आप एक एक करके बताइए कि आपको कितना सही लग रहा है इसमें से।
You were sharing some presentation, right? I think it is not visible. It's not, Shikhar, is it visible? No, no. अच्छा, okay, now it is नहीं नहीं, visible. Yeah. विजिबल है हाँ हाँ। नहीं, इसमें तेरा लाइनअप सही है एक्सेप्ट फॉर करुण। फिफ्थ पे या पंच सिक्स पे हो सकता है, वो इंटरचेंजेबल है जो भी है। नहीं, आई एग्री, बट पांच पे होना चाहिए करुण। नहीं नहीं, इसका वॉशी लाइनअप सही नहीं है डेफिनेटली ना, नहीं इसके खेलेगा। लाइनअप में जडेजा ही नहीं है, कैसे सही हो गया? हाँ वॉशी वही है वही। ना। लीड्स में नहीं नहीं, वॉशी एक नहीं ही खेलेगा, स्पिनर खेलेगा वॉशी ना। नहीं खेलेगा। नहीं ओके। नहीं, वॉशी नहीं खेलेगा, जडेजा ही खेलेगा भाई। इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस भाई, जडेजा को लेके गए हैं तो जडेजा ही खेलेगा। ही हैज द एक्सपीरियंस, ही हैज प्लेड लॉट इन इंग्लैंड। तो ऐसे वॉशी को नहीं अभी देन फिर तो जडेजा ही 5 पे आने के लिए बोलेगा। जडेजा भी बैटिंग अर्ली करता है अवे टूर्स में। हाँ जडेजा सेवन पे आएगा, आई थिंक इनफैक्ट जडेजा मुझे, सेवन पे आएगा। अच्छा, हाउ डिड साई एंड परफॉर्म्ड इन द ए मैचेस? साई नहीं खेला ये मैचेस, वो कहाँ खेला वो ये मैचेस, अभी इंट्रा इंट्रा स्क्वाड वाला खेल रहा है वो। फिर तो साई यार तो हो डेब्यू सकता है नहीं जुरेल है। साई, जुरेल और करुण दोनों खेल सकते हैं फिर तो हो सकता है साई ना हाँ मैं ओपन वही करे। कह रहा हूँ, हाँ साई की जगह कुछ और खेल सकता है, यही मैं बोल रहा था हाँ। एक्चुअली, क्योंकि साई का श्योरिटी नहीं है। आई थिंक साई की जगह सम अदर प्लेयर कैन प्ले, और एंड वैसे भी इंडिया अगर बहुत वो हो ज्यादा गया, लेफ्ट हैंडर्स नहीं खिलाती, पंत और नहीं, यशस्वी और ऑलरेडी है। अगर वो हो गया ना, तो बेसिकली करुण कैन कम एट 3 एंड हाँ जुरेल कैन कम एट से 6। हाँ, ज्यादा बैलेंस लग रहा नहीं, है मुझे। अगर अगर वैसा हुआ तो करुण थ्री पे आ जाएगा, और उसके बाद आप रेड्डी को खिला सकते हो और जडेजा को खिला सकते हो। नहीं तो रेड्डी हाँ, और जडेजा में भी कोई एक ही खेलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बोथ रेड्डी एंड जडेजा, बिकॉज शार्दुल विल डेफिनेटली प्ले, मुझे लगता है शार्दुल ठाकुर जरूर खेलेगा यार रेड्डी का जिस इसमें। तरह से आईपीएल में फॉर्म रहा है तो फिर तो शार्दुल को ही खिलाना चाहिए, बिकॉज वी नो शार्दुल इज अ बेटर बॉलर एंड ही इज द रिकॉर्ड टू बैकअप। हाँ तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, अगर करुण नायर तीन पे बैटिंग करता है तो जुरेल नहीं आएगा, रेड्डी आ जाएगा। और शार्दुल रेड्डी दो बॉलिंग ऑप्शंस के साथ इंडिया जाएगी, मतलब दो ऑलराउंड ऑप्शंस के साथ इंडिया जाएगी, ऐसा भी हो सकता है। दो नहीं, तीन बट ऑलराउंड हो व्हाट गए यू ना, थिंक? जाडेजा, जाडेजा, हाँ शार्दुल और रेड्डी, तीन ऑलराउंड हो गए। हाँ, राइट राइट। एंड मैंने फास्ट बॉलर रखे प्रसिद्ध, सिराज एंड बुमराह। व्हाट आर योर पिक्स? नहीं, फिर तो 8 बॉलर हो गए भैया, तुम जो बोल रहे हो उसमें, 7 बॉलर के साथ खेलेगी फिर इंडिया। नहीं मतलब तीन तो देख, इसमें एक और बहुत लोग ओपिनियन देंगे कि कुलदीप यादव को खेलना चाहिए, हाँ, बिकॉज वो बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर था लास्ट टाइम जब क्योंकि उसने प्रेस इंग्लैंड कॉन्फ्रेंस में इंडिया आई अभी थी। बोला है कि गिल इज अ वेरी गुड, इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड कैप्टन, तो बनता है चांस, तो ऐसा बोला है तो। वैसे तो साई ने भाई, उसका गुजरात टाइटंस का ही है वो तो, मतलब वैसे तो आई थिंक साई विल बी एक्चुअली में हिज मुझे फेवरेट लग रहा है पिक। कि इंडिया, मतलब हो सकता है कि एक लेफ्ट आर्मर भी खिलाए। व्हाट डू यू थिंक, वेरिएशन के लिए? नहीं, आज नहीं तक इनको खिलाएंगे। वो दिमाग आया नहीं है अभी तक, कि लेफ्ट आर्मर खिलाना जरूरी है। तो आई हाँ। डोंट थिंक इट्स गोइंग टू चेंज एक्चुअली। वैसे तो मैं भी चाहता हूँ कि प्रसिद्ध के जगह अर्शदीप को एक ट्राई मिलना चाहिए, बट अभी मुझे नहीं लग रहा उसको और प्रसिद्ध और खिलाएंगे। आकाशदीप में तुम्हें भी लग रहा है प्रसिद्ध को मिलेगा? हाँ आकाशदीप को मिल डेफिनेटली। सकता है भाई। मिल सकता है। नहीं, मुझे लगता है प्रसिद्ध को देंगे चांस, क्योंकि अभी उसका फॉर्म बहुत अच्छा रहा है, मतलब इवन इन हाँ। ऑस्ट्रेलिया ही बोल्ड वेल। अनलकीली उसको विकेट्स नहीं मिले। और आकाशदीप का अभी ऑफ लेट फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, तो मे बी मुझे लग रहा है कि ही वॉज नॉट इवन दैट इफेक्टिव इन ऑस्ट्रेलिया, बट यस, आकाशदीप इंग्लिश कंडीशंस में कैन बी अ डिफरेंट बॉलर। हम्म। अब बुमराह कौन सा टेस्ट नहीं खेलता है, उस टेस्ट में ये सारे एक्सपेरिमेंटेशंस होंगे, अर्शदीप और हाँ, आकाशदीप, करेक्ट। ये सब। फर्स्ट तो खेलेगा तो बुमराह। नहीं, क्योंकि हम्म। क्या है ना, प्रसिद्ध हाँ। ऑस्ट्रेलिया के डेक, मतलब जो मुझे लगता है शिखर, कि प्रसिद्ध इज गुड फॉर ऑस्ट्रेलियन डेक्स, हम्म। क्योंकि वहां पे हिट द डेक हम्म। शॉट है ना। यहाँ पे जो हम्म। कि स्विंगिंग कंडीशंस है, आई थिंक आकाशदीप इज अ मच, मतलब बेटर ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू स्विंग, क्योंकि वो अंदर काटता भी है बॉल को, मतलब हो सकता है वो पी, मतलब प्रवीण कुमार विद हायर स्पीड है, वो 5-6 की स्पीड ज्यादा है प्रवीण कुमार से। हम्म। हाँ, आई हम्म। एग्री तो आई एग्री। मतलब मेरे को ऐसा अगेन लगता जो है कि मैंने वहां पे 11 आई बनाई थी थिंक। ना, मैंने मेरिट के बेस पे बनाई थी। मैं भी चाहता हूँ कि आकाशदीप खेले, मैं भी चाहता हूँ कि ठाकुर खेले, बट मुझे ऐसा लग रहा था कि ये लोग इसके साथ जाएंगे। हम्म। नहीं, मेरिट क्या है नहीं, मेरिट तो इसमें, चलता नहीं ना मतलब भाई, थोड़ा तो अपनी अपनी वो चलती, मेरिट तो क्या ही है भाई। हम्म। मतलब अब तो जडेजा नहीं को मैं हटा के अगर वॉशी रख रहा है तो मेरिट तो क्या ही है भाई, नहीं, क्योंकि वो कैसी मैंने बातें देखा करता है। था कि गंभीर ने एक मैच में अश्विन और जडेजा दोनों को बिठा के वॉशू खिलाया था, तो गंभीर का जो एफिनिटी है उस पे बेसिस पे। तो वो मेरिट नहीं हुआ ना, फिर वो तो प्रेफरेंस ही हुआ। तो चलो अभी नहीं, कंफ्यूज हो रहा what- है। इंग्लैंड की 11 की बात करते हैं भाई, इससे तोड़ू बैटिंग क्या होगी? मतलब सबको 5-5 साल का एक्सपीरियंस है कम से कम। क्रॉली, डकेट, पोप, रूट, ब्रुक, स्टोक्स और जेमी स्मिथ 7 पे।
क्या बैटिंग है यार, मजा आ गया। और वोक्स वोक्स कौन सा कम है भाई बैटिंग में? वोक्स भाई, वोक्स ने भी इंडिया को कई बार पेला है, इंडिया को बैटिंग तो में पता बॉलिंग है, में। सेंचुरी मारी हुई इंडिया के खिलाफ, हाँ। एंड देन ब्राइडन कार्स की ऑलराउंड एबिलिटी है, अगर ओवरटन खेल गया तो वो भी ऑलराउंडर है, बहुत बहुत लंबी बैटिंग है। हाँ मतलब बैटिंग में तो नो डाउट आई थिंक बहुत अच्छा है इंग्लैंड का बैटिंग। एंड वही है, इंडिया को थोड़ा मेंटली प्ले ऑन करना पड़ेगा इनको आउट करने के लिए। मतलब अगर हाँ इस स्क्वाड को देखो ना, तो अपनी बैटिंग तो कुछ भी नहीं है उनकी बैटिंग के नहीं नहीं, आगे। अपनी बैटिंग वी कमजोर है। डोंट इवन स्टैंड अ चांस। हाँ, यहीं इस पे वो बुमराह को समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना पड़ेगा, मतलब इस बैटिंग को तोड़ने के लिए। बुमराह या कुलदीप, इसलिए मुझे लग रहा है कुलदीप को खिलाएंगे, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी बैटिंग को तोड़ने के लिए यू नीड आउट ऑफ द बॉक्स काइंड ऑफ प्लेयर, जो बुमराह है और कुलदीप है मुझे लगता है। भाई हाँ, ऑनेस्टली कुलदीप की जडेजा खासियत को ये है कि वो खिला रहे बिना हैं। पिच के भी खेल लेते हैं ना। कुलदीप की बॉलिंग में हाँ गाइल है, वो बिना पिच के सपोर्ट के ही कैन डू वेल। और भाई श्रेयस भाई। ऑनेस्टली ठीक है, आप लोग जडेजा जडेजा बोल रहे हो, बट हम सबको पता है जडेजा जितनी बार भी इंग्लैंड गया है उसने बॉलिंग से कुछ नहीं किया है, यस बैटिंग में यस। उसने रन मारे हैं। बट बॉलिंग से कुछ थ्रेट नहीं होने वाला है जडेजा। तो ठीक है, वो नाम का ऑलराउंडर है फॉर इंग्लैंड, मतलब कि उसने उसको कुछ करना नहीं बॉलिंग में, वो कुछ करेगा नहीं जडेजा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ये आप लोग सब भी जानते हो कि जडेजा से बॉलिंग नहीं होगी इंग्लैंड में। तो करेक्ट। आई थिंक वहां पे थोड़ा ऐसा कुछ हो सकता है कि मे बी दे पिक। और वॉशिंगटन भी सेम ही है, वॉशिंगटन भी बॉलिंग कुछ खास करेगा आई नहीं। मीन इंग्लिश तो कंडीशन में मुझे, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उससे, सही बात है। हाँ तो मुझे लगता है यहाँ पे कुलदीप का चांसेस बहुत हाई है पिक होने का, वाह। स्पेशली लुकिंग एट द बैटिंग। एंड हम्म। मुझे लगता है कुलदीप को बैक करेंगे ये लोग। या ऐसा भी नहीं कि मतलब इंग्लैंड के बैटर्स बहुत अच्छे हैं, इसमें थोड़े इनकंसिस्टेंट बैटर्स भी हैं, लेकिन एक बात मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, घर पे रूट और ब्रुक का पार्टनरशिप 100 के ऊपर का एवरेज है। तो वहां पे स्पेशली मुझे लगता है कि स्पिन शायद ब्रुक को आउट कर पाए, तो वो इंटरेस्टिंग रहेगा कि इंडिया उन दोनों को कैसे हैंडल करते हैं, बिकॉज लास्ट समर में बहुत रन्स बनाए थे। हालांकि वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड टूर कर रहे थे लास्ट टाइम, बट बहुत रन्स बनाए थे दोनों श्रीलंका। ने मिलकर। श्रीलंका एंड वेस्ट इंडीज, या। हम्म। हाँ, एक्चुअली ना, नहीं रूट जिस फॉर्म में चल रहा है ना लास्ट 2-3 सालों से, इज बीन मतलब वो नेमेसिस। हम्म, सचिन का रिकॉर्ड के पीछे ही पड़ा हुआ है वो तो, मतलब बिल्कुल। हम्म, बट बॉलिंग बहुत वीक है फर्स्ट टेस्ट में, स्पेशली एटकिंसन के आउट होने के बाद। अभी ऑप्शन है इनके पास, कोई एक नया बंदा है सैम कुक, आई डोंट नो, उसको मैंने रखा नहीं। बट ब्राइडन कार्स मुझे लग रहा है, बिकॉज वो पाकिस्तान में डिसेंट किया था। एंड जॉश टंग दूसरा, एंड वोक्स, आई थिंक बस तीन ही खेलेंगे, स्टोक्स डालेगा एंड शोएब बशीर डालेगा बाकी ओवर्स। नहीं वही है, बॉलिंग तो उतनी अच्छी नहीं है। और इंडियन बैटिंग को इसी पे कैपिटलाइज करना पड़ेगा, रन्स भर भर के बनाने पड़ेंगे, हम्म। इंग्लैंड के टोटल्स को मैच करना पड़ेगा। और हो सकता है अगर अगर जीतना है इंडिया को तो एग्रेसिवली भी खेलना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लैंड तो जीत के लिए ही खेलेगी। दे विल हम्म। प्ले फॉर द रिजल्ट। ऑल्दो अभी बैस बॉल का उतना वो रहा नहीं पहले जितना कमिटेड थे ये लोग, अब तो ये हम्म। लोग भी 4 के रन रेट से ही खेलते हैं। वो दिख गया, श्रीलंका वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी 4-5 के रन रेट से ही हम्म। खेला इन्होंने। और बेन स्टोक्स तो कभी खेलता नहीं है बेन बैस स्टोक्स तो बॉल। डिफेंस खेलता है प्योर, हाँ। हाँ वो अपना ही गेम खेलता है। तो बैटिंग इज स्ट्रांग, बट वही है कि थोड़ा अगर स्पाइसी पिचेस मिल जाए, और इफ इंग्लैंड इज लूज द टॉस, इंग्लैंड अगर टॉस हार जाए हम्म। तो इंडिया को एक एडवांटेज मिल सकता है यहाँ पे, कि हम्म। इनको पहले आउट करके प्रेशर में डाल दें। हाँ। और क्योंकि इंडिया की बॉलिंग अच्छी है, तो इफ शार्दुल सिराज, मेरा सिराज से बहुत एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि हम्म। जैसे आकाशदीप के बारे में आपने जैसे बोला श्रेयांश भाई ने कि ही इज प्रवीण कुमार प्लस 5-10 किलोमीटर। हम्म। तो मुझे लगता है सिराज ने लास्ट टाइम बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इंग्लैंड में। और उसका वो जो जो पैट कमिंस और ये भी कर रहे थे अभी, रबाडा, जो हम्म। एलबीडब्ल्यू का हिट करते हैं ये लोग, स्टंप्स जैसे हिट करते हैं। आई थिंक वो सिराज बहुत अच्छा करता है राइट हैंडर हाँ। के अगेंस्ट। ही कैन हिट द पैड्स ऑफ हाँ। रूट और दिस गाइस क्रॉली। रूट का तो पता नहीं, बट क्रॉली और ये पोप वोप का तो कर ही सकता है। और तो जब 2 मैच बुमराह नहीं खेलेगा तो उसको तो लीडर बनना है पेस अटैक का, तो उसका तो रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। एग्जैक्टली exactly. तो यहाँ पे वही इंडिया का होप है आई थिंक, सिराज, शार्दुल के लोअर ऑर्डर रन्स, और भाई गिल को तो बैटिंग मतलब दिखाना पड़ेगा, गिल को कि कैप्टन बना है तो उसे अच्छा खेलना ही जो तूने पड़ेगा मतलब। फास्ट खेलने वाली बात करी ना शिखर, इसमें अभी जो करंट टॉप फोर अगर हम हम्म, देखें, यशस्वी, केएल, साई और गिल, इसमें सिर्फ यशस्वी है जो थोड़ा एग्रेसिव खेलता है, बाकी लोग तो टाइम लेंगे काफी। तो वहां पे हाँ। भी देखना पड़ेगा, करुण नायर थोड़ा स्ट्रोक में करे, में भी उसको ही खिलाना बेटर है 3 पे, मुझे भी अब लग रहा है। हम्म। नहीं, एनीवेज। यशस्वी का ये टोर कितना अच्छा होगा वो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। जैसे ओपनर्स के बारे में हमने बोला, दिनेश कार्तिक और वसीम जाफर के बारे में हमने बात किया अभी।
या और इवन लास्ट ओवर जो हम ऑलमोस्ट जीत गए थे उसमें रोहित एंड केएल वेर आई थिंक ओपनिंग इन दैट टूर, तो वो लोग ने भी बहुत अच्छा ओपनिंग किया था। हम्म। रोहित ने 100 भी मारा था। तो इस बार यशस्वी। भी हम्म। यशस्वी अब हैज लुक्ड लिटिल बिट इम्पेशेंट। अभी आईपीएल मोड से आ रहे हैं सब लोग। मुझे और फर्स्ट इनिंग्स में उसका थोड़ा डर है, जैसे अभी हमने देखा रिकल्टन भी ऐसा वो ड्राइव्स मारता है, फेल हुआ पूरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में। हम्म, वैसे यशस्वी को भी वो ड्राइव मारने का जो है ना वो काफी ज्यादा रहता है, कि उसका हम्म, कंट्रोल नहीं होता। तो मुझे फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा डाउट है कि यशस्वी के नंबर्स आएंगे क्या। बट डेफिनेटली जब इंडिया को जरूरत होगी तो ही द फर्स्ट गाय टू स्टेप अप, नो डाउट। हाँ। और मेरा एक्चुअली गिल के लिए मुझे सबसे बड़ा थ्रेट एक्चुअली शोएब बशीर लग रहा है, क्योंकि वो उसका वो जो ऑफ स्टंप है ना वो एक्सपोज कर देता है लीव हम्म। करते वक्त, या फिर डिफेंस करते वक्त भी उसके बैट और पैड में वो थोड़ा गैप होता है। तो हम्म। वो शोएब बशीर एक्चुअली मैं देख रहा था जिम्बाब्वे वाला टेस्ट। आई एम श्योर मतलब सबने फॉलो नहीं किया था, बट आई वाज वाचिंग दैट टेस्ट क्वाइट। उसमें शोएब बशीर वाज गेटिंग बिग टर्न, मतलब ऑन हम्म। दैट पिच। एंड आई थिंक वो बर्मिंगहम का था या कहाँ था एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा वो वेन्यू। हाँ। बट ही वाज गेटिंग सम बिग टर्न इन दैट पिच, तो ही विल डेफिनेटली। और इंडिया बहुत बार जो हारी है सीरीज इंग्लैंड में, उसमें मोइन अली आप देखो बहुत बार विकेट्स लेता रहता है। विराट कोहली का बड़ा विकेट मतलब वही ले करेक्ट लेता था, करेक्ट, हाँ। या स्वॉन ड्राविड का विकेट लेता था। हम्म। मतलब स्पिनर्स, इंग्लैंड के स्पिनर्स समाओ वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मार देते हैं। हमको लगता है कि फास्ट बॉलर्स करेंगे, हम्म। फास्ट बॉलर्स ये करेंगे वो कर देंगे, बट वहां इफ आई पे एम नॉट वाइल्ड रॉन्ग, कार्ड मोइन अली एंट्री। ने तो शायद फाइफर ले लिया था एक सडनली ऐसा, जब हाँ डिटीरियरेट। एग्जैक्टली हाँ। exactly. मतलब यस। मुझे याद है वो 2014 वाला भी और 2018 वाला भी, हम्म। दोनों टूर्स में मोइन अली पूरा छाया रहा मतलब। हाँ, वो बहुत बैट सारे से भी विकेट्स बना ले है। रहा था। हाँ, तो शोएब बशीर तो ऑब्वियसली काफी टैलेंटेड है, अभी सिर्फ 21 साल का है। 16 मैच में 58 विकेट्स है, वेरी गुड हम्म, स्टार्ट टू हिज करियर, एंड कैप्टन का पूरा भरोसा है उस पे, दैट बैक्स सो। हम्म। और ब्राइडन कार्स इज द वन गाय आई वुड लव टू सी। मतलब इसने न्यूजीलैंड में कुछ धमाका कर दिया था। वहां हाँ, पे न्यूजीलैंड के जब होप्स क्रिएट हो गए थे डब्ल्यूटीसी क्वालिफिकेशन के लिए, तब उसने जाके वहां पे 10 फॉर 10 फॉर 2 बार ले लिया था या ऐसा कुछ, और अभी बहुत जो इनके अमेजिंग करंट बॉलिंग। क्रॉप बचा है उसमें यही है जो थोड़ा फास्ट डालता है 145 तक, बाकी सब तो पेस भी नहीं है उनके एग्जैक्टली। पास। हाँ। तो इसका मुझे देखना पड़ेगा कैसा रहता है। ऑल्दो अभी तक जो वाइट बॉल सीरीज था इसका, जो अभी आया था, हम्म। उसमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था ये। या बट लेट्स सी अगर ऑलराउंडर जैसा खेलता है या कैसा खेलता है वो देखना पड़ेगा ब्राइडन कार्स का। वोक्स को जरूरत तो रहेगी एक आध सपोर्ट की, तो ही हैज टू प्ले अ बिग रोल। हम्म, अगेन हम्म, मैंने तो क्लोजली फॉलो नहीं किए, बट या शिखर हम्म, ऑलरेडी मेंशन, करुण नायर ने 200 बनाया था पहले मैच में, एंड दूसरे में या केएल राहुल का 100 था, वोक्स के 3 विकेट्स थे। ओ एंड हम्म, अंशुल काम्बोज ने अच्छा बॉलिंग किया था अगेन, बट ही इज नॉट इन द स्क्वाड। तो हम्म। यही इसके बारे में आई कोई डोंट थिंक कमेंट्स। वी कैन हाँ। वी कैन रीड मच इनटू दिस। इसमें तो तनुष कोटियान ने भी 90 मारा है। हाँ, ठीक है तो जॉश हल मुझे एक अच्छा बॉलर लगा था, तनुष, आई डोंट नो उसको क्यों नहीं इंक्लूड करा इंग्लैंड ने, उसको चांस क्यों नहीं दिया। उस काफी टॉल हाँ, है वो। हाँ। तनुष कोटियान इज अ गुड बैट्समैन। रणजी में भी बहुत रन है उसके, कुछ 40-44 का एवरेज है उसका बैटिंग एट नंबर 9। या बट हाँ अगर वो रन मार रहा है तो यू कैन थिंक कि मतलब वैसा क्वालिटी ऑफ अटैक नहीं है जैसा। हाँ, तो आई अभी मीन ठीक है, देखेंगे। केएल गॉट सम टाइम। वैसे बारिश हो रही थी बैंगलोर में, सो ही कुड नॉट प्रैक्टिस, तो वो आ गया थोड़ा प्रैक्टिस करने। हम्म। बाकी लोग अभी इंट्रा डे में खेल रहे हैं। आई थिंक सरफराज का कंट्रीब्यूशन इसमें कहीं दिख नहीं रहे, बट हम्म। उसने भी 90 मारा है। और हाँ। आज उसने इंट्रा डे में, इंट्रा स्क्वाड में 100 मार दिए हैं। तो हम्म। नेवर नो कि सरफराज कहीं से आ जाए, वाइल्ड कार्ड हो सकता है। हम लोग अभी हाँ, करुण और जुरेल की बात कर रहे हैं, बट हो सकता है यार सरफराज, वैसे तो सरफराज शायद स्क्वाड में ही नहीं है, सॉरी। नहीं नहीं अभी तो वो अभी नहीं तो है। नहीं आएगा। हाँ, ये 18 मैन अभी तो के में नहीं था। आएगा नहीं, हाँ, बट कुछ भी इंजरी हुए बीच में टूर बहुत में, बड़ा आई टूर होता थिंक है 5 टेस्ट। हम्म। यू कैन एक्सपेक्ट कि सरफराज आ जाएगा, क्योंकि अभी ये टूर तो अगस्त के मतलब फर्स्ट वीक तक चलने वाला है ना, राइट। करेक्ट। सो यस, फर्स्ट वीक ऑफ बहुत ही अगस्त। लंबा टूर है। हम्म, एंड ये अभी हमने कुछ पोल किया था आज सुबह, तो हम्म, 4 लोग बोल रहे हैं कि इंग्लैंड जीतेगी, प्रतीक, माई सेल्फ, कुणाल, जॉयदीप, देवांशु एंड शिखर हम्म। एंड आकाश डेविल ने कहा है कि इंडिया जीतेगी। श्रेयंस भाई आपका क्या वोट है, इंडिया और इंग्लैंड, थोड़ा प्रेडिक्शन अगर करें तो। म्यूट पे है श्रेयंस भाई। इंग्लैंड इंग्लैंड, क्योंकि बैटिंग उनकी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है।
हाँ। और बुमराह 3 ही मैच खेलने वाला है, तो मेरे को मतलब इंग्लैंड इज लुकिंग। और प्लेयर्स टू वॉच में भी आप बता दीजिए, जैसे मैंने तो साई सुदर्शन पे भरोसा रखा है, करुण नायर पे, क्योंकि मुझे लग रहा है गिल केएल भले ही बड़े नाम है बट कंसिस्टेंसी ये लोग दिखा सकते हैं। एंड बुमराह नो डाउट वो तो हमारा ट्रम्प कार्ड है ही सही बॉलिंग में। एंड इंग्लैंड की तरफ से मैंने डकेट रूट को लिया है, क्योंकि डकेट ने अच्छा ओपन किया है, फास्ट ओपन करता है, रूट तो बैकबोन है। और एटकिंसन जो फर्स्ट मैच नहीं खेलेगा बट 4 मैच में काफी इंपैक्ट कर सकता है उसको, मतलब जब रेडी किया इंग्लैंड ने तो उन्होंने जिम्मी एंडरसन को बोला कि अब आप रिटायर हो जाइए, तो मतलब उस पर काफी फेथ है। आपके पिक्स क्या होंगे शैंस भाई, प्लेयर्स टू वॉच में? मेरा है यशस्वी जायसवाल, क्योंकि उसका पहला टूर है। या। और बुमराह तो ऑब्वियसली मतलब देयर इज नो डाउट। हम्म। और मिडिल ऑर्डर में आई वुड गो फॉर पंत, ओ वाह। क्योंकि इंडिया को जीतना है तो यही 3 मैच विनर्स हैं बेसिकली। हम्म। पंत का पता नहीं, बहुत बेकार आईपीएल रहा है, कैसे माइंड फ्रेम में होगा, बट अगेन टेस्ट क्रिकेट में ही इज द बेस्ट, सो आई लाइक योर पिक्स भाई। शिखर, आई डोंट नो इफ इज अवेलेबल, बट या शिखर, योर पिक्स। आई थिंक फॉर इंग्लैंड आई विल स्टार्ट विद इंग्लैंड। तो मुझे लगता है क्रिस वोक्स, माय फेवरेट ऑफ प्लेयर इन इंग्लैंड। हम्म। आई थिंक ही इज गोइंग टू प्ले अ बिग पार्ट इन दिस सीरीज। एंड उसके फॉर्म पे डिपेंड करेगा सब कुछ कि हम्म। वो कैसा बॉलिंग कर रहे हैं। राइट। और इंडिया की तरफ से आई विल पिक यशस्वी जायसवाल हम्म। and I will pick Shardul Thakur. वाओ। If he plays, I think he's going to be vital with हम्म। the ball. Partnership breaker, बड़े पार्टनरशिप्स जब इंग्लैंड के लगेंगे और वो थोड़ा अटैकिंग मोड में जब जाएंगे, तो एक दो फुल टॉस देके उनको चीप डिसमिसल्स करवाना, वो शार्दुल ठाकुर का रोल रहेगा। हम्म। और क्विक मुझे 50 लगता है मारना वो भी बॉलिंग शार्दुल ठाकुर ही कर सकता है, जब टोटल थोड़ा कम लग रहा हो और 50 रन चाहिए हो तो। डेफिनेटली नॉट जस्ट 50, आई एम एक्सपेक्टिंग बिग हंड्रेड्स। मतलब ही शुड बी एबल टू स्कोर, क्योंकि रणजी ट्रॉफी इज इंडियाज फर्स्ट क्लास क्रिकेट। वहां पे जब वो इतना कंसिस्टेंटली 100 मार रहे हैं, तो व्हाई नॉट इन इंग्लैंड? he should he already scored 250s in England, so he should हम्म। now, and he scored as 50 in Australia, so why not go for 100 now? या। He should convert it. डेफिनेटली और शिखर, दूसरा